Hello guys, I hope you well. So, our second lecture in economics, micro and macroeconomics features and differences. So, what is the micro and macroeconomics, right? We already learned this topic, definitions, right? And generally examples of micro and macroeconomics. So, that is a micro and macroeconomics. Okay, we discussed that. Second topic is differences positive and normative economics, and third is economics is science and arts, and central problems of economics and opportunity of cost. So first topics is micro and macroeconomics. So microeconomics is study of small quantity and goods and services, okay, and macroeconomics the whole quantity goods and services, right? We already discussed that topic, but we all at this time we revised that, okay. So microeconomics is a study of small quantity goods and services, right? Just example of if any class 11th and 12th, if we want to good result, right? So if we want to good result, that is called a macroeconomics, because result of 11th and 12th class, right? And microeconomics is if we focus for result an individual student, ठीक है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पर अगर फोकस किया जाता है तो ही तो हम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कर पाएंगे, ओके. Just means it is interdependent. Microeconomics is dependent on macroeconomics and macroeconomics is dependent on microeconomics, right? I think you understand that. And now we study of features, okay. And second topic is positive and normative economics. So positive and normative economics differences, okay. So positive economics, it is a only fact, it is a dependent on fact, like present, past and future. Just example of population, okay. So population is a dependent on present, past and future. I already explained that, like 300, 3000, 3 lakh, 3 crore, right? So that is the example, it is a fact ऑफ पॉपुलेशन, है ना. अभी क्या है, कल क्या थी, इन फ्यूचर क्या होगी, जस्ट ग्राफिकल फॉर्म्स, है ना. तो ये जो चीज़ होती है वो पॉजिटिव होती है, जिस पर हम फैक्ट होता है, जिसके बारे में हम प्रेजेंट पास में बता सकते हैं. एंड नॉमरेटिव इट्स नॉट डिपेंड ऑन फैक्ट, ओके. यहाँ पर सिर्फ डिस्कस किया जाता है बेटा. जब डिस्कशन की बात होती है तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को लेकर बोल सकते हो, आप अपनी ओपिनियन रख सकते हैं. तो जैसे कहा जाता है ना कि अगर चार इकोनॉमिक्स हैं, अगर वो कुछ बात कर रहे हैं और तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स की फोर्थ डेफिनेशन, फिफ्थ डेफिनेशन ऑलरेडी बन जाती है, ठीक है. तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका फैक्ट नहीं है, वहाँ पर है तो वो बन जाएगी, है ना. सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स साइंस एंड आर्ट. दिस इज द सेम ऑफ बिजनेस चैप्टर फर्स्ट, ओके. Economics is the business and management is the science and art, because it is a use of machine technologies, rules and regulations, and how to sell product, right? Same as it is of economics is the rules, use of rules, regulations, and art is how to reduce error, how to reduce cost, okay. So same are not different, only some points are different, okay. And last, most important is the central problems of economy. Central problems of economics, if we started any business, ठीक है. सो बिजनेस की ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया था, आई थिंक यू रिमेंबर दैट, ओके. आपको हर एक चीज़ याद रखनी है, तो ध्यान रखिएगा. इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्ट क्या है, ओके. इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्ट या बिजनेस में जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इकोनॉमिकल, ओके. सो यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, तो क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्यों प्रोड्यूस करना है, ठीक है. मीन्स आपको ध्यान हो, यू रिमेंबर दैट इन 11th क्लास, राइट. विच टाइप्स ऑफ बिजनेस इज परफेक्ट फॉर यू, राइट.
किस टाइप का बिजनेस परफेक्ट है, क्यों है, क्या करना है, उसका बेनिफिशियल क्या है, तो वो सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स में आ जाती है, ठीक है। क्यों करना है, कब क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, ओके, हमें और अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो हम उससे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब जस्ट एग्जांपल, मेरे पास एक जॉब है और उससे ज़्यादा अच्छी सैलरी में मुझे एक जॉब मिल रही है, तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मुझे अगर इसे नहीं करना है या सैलरी कम है और मुझे इस जॉब में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो मैं इसे चूज़ करूँगी। ऑफ कोर्स हर कोई प्रॉफिट चाहता है, राइट। सो दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट, इट मीन्स अ नेक्स्ट चॉइस, नेक्स्ट ऑप्शन, ओके। ये आई थिंक हमारा टॉपिक्स के हेडिंग्स में ही हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। Features of macroeconomics. Macroeconomics features as first is broad perspective. Broad perspective, it means a large. Okay, a large means if we study of whole quantity goods and services, so there is a macroeconomics deal with national and international issues. If we started any issues like price, demand, right? Like petrol price, okay, and petrol. This product एवरी पर्सन नीडेड दिस प्रोडक्ट, राइट। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कंट्री में रहता हो, उसे पेट्रोल तो चाहिए, बिकॉज दे यूज ऑफ कार, बाइसिकल्स, सॉरी, कार, ओके। सो इफ दे यूज एनी व्हीकल्स, okay, vehicles and bicycles so same, if any person use of vehicles, so use of any person need of पेट्रोल, डीजल, राइट। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं बेटा कि नेशनल इंटरनेशनल, तो उसका जब प्राइस कम ज़्यादा जो भी होता है, तो उस चीज़ की स्टडी अगर हम बात करते हैं तो जनरल लेवल पर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ कही गई है वो चीज़ यहीं पर है कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव, मतलब हम उसको और जनरल लेवल पर बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली बात तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेवल्स की बात आती है, तो यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड दिस डस नॉट गिव एम्फासिस टू स्मॉल वेरिएबल, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में तो यहाँ बात होगी ही नहीं। तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ब्रॉड, राइट, लार्ज एरिया, लार्ज स्केल्स, ओके। अगर हम जैसे बात करते हैं ना कि भैया जब बात होती है बड़ी मछलियों की, तो छोटी मछलियों को कौन गिनता है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है, हाँ। तो ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में ये चीज़ लिखो तो प्लीज़ हाँ इस एग्जाम्पल को मत लिखना। हाँ, जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल आपको पेट्रोल का बताया वो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। सो second point is importance of dynamic economics. So macroeconomics features in importance of dynamic economics because macroeconomics is dynamic process, okay. Macroeconomics analysis gives a more importance, okay, to dynamic economics analysis for every place, okay. आज अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस बढ़े कैसे किसी भी प्रोडक्ट के, है ना, क्योंकि उसको एनालिसिस किया गया। जब एनालिसिस किया गया तो क्या हुआ, मतलब कि उसकी जब जांच की गई, एनालिसिस किया गया, तो क्या हुआ कि एक कमी मिली, एक एरर मिली, हम उसे इम्प्रूव करके सेकंड पर गए, फिर सेकंड में हमने इम्प्रूव किया, हम थर्ड पर गए। तो वो इट इज सच डायनेमिक प्रोसेस, ओके। हमने एक जगह पर हम स्टॉप नहीं हुए, राइट। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। अगर ये जो प्रोसेस है, अगर ये इम्पॉर्टेंस अगर हम बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक इकोनॉमिक है, ठीक है, क्योंकि ये अपर में जाती है, डाउन्स में नहीं जाती है, ठीक है। एंड थर्ड इज एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स and analysis of general problems. General problem, it means problems of income, national income, problems of employment, problems of price, problems of demand, okay, problems of environment, right. समथिंग मीन्स अगर इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो सभी होता है, ठीक है।
तो ये जो चीज़ है प्रॉब्लम्स ऑफ जनरल लेवल पर बात हुई है ना, मतलब हम इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं कर रहे। वो कहा जाता है ना कि हम एक एक चीज़ों को तो भैया गिनते ही नहीं है ना, तो यहाँ पर सबके बारे में बात की जा रही है, तो प्रॉब्लम्स ऑफ जनरल, राइट। Macroeconomics analysis dwell on general problems of national level, like the effect on monetary policy, fiscal policy, general price level, and general employment, etc. Right? So, last is a priority to group interest, that is not a focus on individual price, okay, and individual level. It is a focus of and priority of group interest. Um, it means only of theory are not totally separate and interdependent independence, but interconnected and interdependent, right. Micro and macro interdependent, because thus macroeconomics is represented the economy as a whole. It aims at dealing with the aggregates and average. तो यहाँ पर जो हम बात करें एग्रीगेट्स और एवरेज की, ओके, तो एग्रीगेट और एवरेज मैक्रो में निकलता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर ग्रुप के बारे में बात होगी, इंडिविजुअल की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी जाती है मीन्स देयर इज अ प्रायोरिटी ओनली ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट, लाइक if we started any business, just example, if we started any business, so our man and general object is अर्निंग प्रॉफिट, राइट। अगर हम अर्निंग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं बेटा, तो वहाँ पर ग्रुप इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर आपको सेलिंग में, तो आपको वहाँ भेज दीजिए। जब हम जनरल की बात कर रहे हैं तो वहाँ ओवरऑल की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ जब हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो पहले हम उस चीज़ को देखेंगे, देन आफ्टर फोकस ऑन अदर पॉइंट्स, राइट। सो दैट इज़ अ priority of group interest. I think you understand these topics. So next is microeconomics. Microeconomics is the features of study of individual units. We already explained you study of individual units. Macroeconomics study individual units rather than all the units combined together, राइट। अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल यूनिट्स एंड इंडिविजुअल यूनिट्स की, जैसे एग्जांपल ऑफ क्लास, अगर एक एक स्टूडेंट्स को फोकस करेंगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा। जब हम एक एक स्टूडेंट्स को फोकस नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो हो जाएगा 50-50, या ये तो पढ़ते ही नहीं है, ये तो बच्चे करते ही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ नहीं होती है। जब हम अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हमें एक एक स्टूडेंट्स को फोकस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात होती है कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इट मीन्स ओनली ऑफ स्टडी ऑफ एवरी पॉइंट, राइट। बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस ओनली अ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड अ प्राइस थ्योरी, ओके। प्राइस थ्योरी इट मीन्स नॉट अ लेवल, नॉट ग्रुप, ओके, इट्स अ प्राइस थ्योरी। प्राइस को किसे बढ़ाना है, इट मीन्स कैसे प्राइस अपर होगी, कैसे डाउन होगी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इट डिटर्मिनेट्स द इंडिविजुअल प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, क्योंकि बात यहाँ पर किसकी हो रही है, प्राइस की थ्योरी की, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, इंडिविजुअली प्राइस एक डिफरेंट प्रोडक्ट पर कैसे होगी, लाइक पेन में जेल पेन है, बॉल पेन है, राइट। तो ये पेन का हमने अलग डिपार्टमेंट रखा, उसकी प्राइस अलग होगी, मार्कर की प्राइस अलग होगी, डस्टर की प्राइस अलग होगी, ब्लैक बोर्ड की प्राइस अलग होगी, राइट। तो दैट इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड डिफरेंट प्राइजेस, ओके। सो एनालिसिस द डिमांड एंड सप्लाई, ओके। अब डिमांड क्या है और सप्लाई कितनी करनी है, ठीक है। डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई हम कम कर रहे हैं, है ना। या फिर डिमांड कम है और सप्लाई हम ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। सो एनालिसिस ऑफ ओनली बिहेवियर ऑफ बायर एंड सेलर, ओके, बिकॉज वी ऑलरेडी first lecture we study of economics, okay, economics definition. So economics definition is called that is social science, okay, the behavior of human behavior, right. So buyer and seller also human, right. So study of small variables, okay, small variables
यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक एक स्टूडेंट्स को फोकस करते हैं, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स गिव एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल, दैट वेरिएबल हैव सच अ लिटिल इन्फ्लुएंसेस that they do not affect the whole economy. For example, the consumption by a single consumer or output or a single firm cannot have an influences on the whole economy. अगर एक एक कस्टमर को हम देखते हैं, उसको देखते हैं, तो क्या वो पूरे उसको फोकस कर सकता है? पूरे उसको अगर बात कर रहे हैं कि पूरी हॉल इकोनॉमी को चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकता। पर जब तक हम एक एक का फीडबैक नहीं लेंगे तब भी तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दोनों चीज़ होती है कि जब तक आपको इंडिविजुअल भी करना है, आपको जनरल पर भी करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो जब हम डिपेंडेंट की बात करते हैं, क्योंकि अब हमारा टॉपिक आ चुका है इंटरडिपेंडेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। जब तक हम इंडिविजुअल प्राइस की बात नहीं करेंगे तो हम जनरल प्राइस पर नहीं आ सकते, मतलब हम नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते हैं, ओके। जब हमें नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब कि पहले हम पर कैपिटल निकालेंगे, मतलब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे। जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे देन आफ्टर वी कैलकुलेट टू नेशनल इनकम, राइट। सो इट इज इंटरडिपेंडेंट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट इज positive and normative. Positive and normative, we already discussed this definition, okay. So differences and features, if you want to write this like features, आप फीचर्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, राइट। व्हाट यू वांट, जो भी आप जैसा चाहें, है ना। इसीलिए आपको एक क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस की तरह उसको बता दिया जाता है। आप चाहें तो पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉजिटिव थ्योरी एंड तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी इज़ द ऑब्जेक्टिव, राइट। पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है? ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। अगर सिंपली वे में अगर बात करते हैं हम शॉर्ट पॉइंट्स में, तो पॉजिटिव इकोनॉमी थ्योरी इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड नॉमरेटिव इज अ सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल वे में अगर बात करते हैं कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को लेकर हम चलते हैं, ठीक है। एंड सब्जेक्टिव जिसमें किसी सब्जेक्ट को लेकर चला जाता है ना। मतलब कि वहाँ पर पॉजिटिव में फैक्ट हो गया, इसलिए वो हमारा ऑब्जेक्ट है कि भैया हमें पॉपुलेशन बतानी है। अब सब्जेक्टिव मतलब एक सब्जेक्ट को लेकर ही हम पूरी गाथा गाते जाएंगे, ठीक है। गाथा मतलब पूरा एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक दोनों चीज़ होती है। अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एंड इम्पॉर्टेंट वेरिएबल, मतलब कि दोनों चीज़ हो गई इसमें, ठीक है, कि इनका ऑब्जेक्ट और साइंटिफिक अटेम्प्ट्स डिस्क्राइब एक्सप्लेन द बिहेवियर। अब कौन सी चीज़ हो गई कि यहाँ पर जो बिहेवियर है वो क्या है? इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस वेरिएबल की इकोनॉमिक्स क्या है? वेरिएबल है, कस्टमर का बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब इनका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एंड सब्जेक्टिव इन्वॉल्व सब्जेक्टिव वैल्यू जजमेंट अबाउट व्हाट इकोनॉमी मस्ट बी और व्हाट मेजर, राइट, इज टू बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी। अगर बात किया जाए कि उसको काउंट कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, राइट, टू बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमी। अब आपकी इकोनॉमी क्या है, कैसी है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, मतलब कि वो सब्जेक्ट बेस पर आ गया, है ना। जो हमने जब हम छोटे थे, है ना, तो हमने पढ़ा था इंग्लिश में वर्बल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो चीज़ यहाँ पर आ चुकी है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या, मैन ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो हमारे पॉजिटिव में आता है। सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे सब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। अगर बात करते हैं रिफ्लेक्ट एंड फैक्ट, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन फैक्ट, राइट, एंड स्टडी एक्चुअल इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड इज एग्जाम्पल वाई द इकोनॉमी वर्क एंड इट डज। क्यों ये इकोनॉमी कैसे वर्क करती है और कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। और यहीं पर मेक अ प्रिस्क्रिप्शंस व्हाट शुड डन इन द इकोनॉमी, और हमें क्या करना चाहिए
वो सारी चीज़ें क्या आ जाएगी, नॉमिनेटिव में। मतलब कि पॉजिटिव में हमने वो चीज़ देखी कि हमें कैसे करना है ना, कब करना है, क्यों करना है। और नॉमिनेटिव में कौन सी चीज़ आ गई कि हमें क्या करना चाहिए, जो कुछ हुआ जैसा हुआ छोड़ो, अब क्या करना है वो चीज़ बतानी है ना। तो वो हमारे इस चीज़ में आ जाती है। अब अगर बात करते हैं, इज द बेसिस ऑफ प्रिडिक्टिंग हाउ द इकोनॉमी विल रिस्पॉन्ड अ चेंज सरकमटेंस। ठीक है, मतलब एक तरीके से बात की गई कि कैसे किसी चीज़ को चेंज किया जा सकता है, कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जस्ट लाइक ऑफ एस्ट्रोलॉजर, राइट, जिसे प्रेडिक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड इन फ्यूचर क्या होने वाला है, राइट। तो प्रेजेंट में क्या है और पास्ट में क्या था, उन दोनों को मिलाकर जस्ट इफ वी फाइनेंस मिनिस्टर क्रिएट अ बजट, राइट, तो वो पास्ट और प्रेजेंट को दोनों को लेकर ही तो फ्यूचर का बजट बनाता है ना, प्रेडिक्ट करता है कि भैया ये चीज़ होनी है, ऐसे होनी है। तो वो चीज़ हम पॉजिटिव में लेते हैं। नॉमिनेटिव ऑफर रिकमेंडेशंस फॉर चेंजेस। यहाँ पर जिस भी चीज़ का रिकमेंडेशन दिया जाता है वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है, चेंजेस के लिए। इन इकोनॉमिक पॉलिसी टू अचीव एन ऑप्टिमल एंड डिस्क्रिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो स्टेट वाइज होते हैं, उनके जो करंट अफेयर्स होते हैं, उनके जो फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं, उनको लेकर किया जाता है। एंड नेक्स्ट, फ्री फॉर्म सब्जेक्टिव वैल्यूएबल जजमेंट एंड इज बेस्ड ऑफ पर्सनल वैल्यूएबल जजमेंट। मतलब अगर दोनों में बात की जाए तो यहाँ पर फ्री फॉर्म सब्जेक्टिव वैल्यूएबल जजमेंट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। वैल्यूएबल जजमेंट और सब्जेक्टिव जजमेंट, मतलब यहाँ पर एक तरह से हमने जो बात की कि फ्री फॉर्म सब्जेक्टिव होता है और यहाँ पर पर्सनल जजमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर डिस्कस किया जाता है ना। एंड लास्ट, रिप्रेजेंट्स एन अप्रोच ऑफ साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। मतलब अगर हमने बात की कि वहाँ पर फैक्ट की है तो वहाँ पर साइंटिफिकली देखा जाता है, साइंटिस्ट देखते हैं, है ना, कि भैया कोई वायरस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या है, तो उसको कैसे सॉल्यूशन करना है, तो वो पॉजिटिव क्योंकि फैक्ट पर है। और नॉमिनेटिव में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि डिस्कस करना है भैया, कोई फैक्ट नहीं है, कुछ नहीं और कुछ होना है नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉलिसीज जो होती हैं और पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो सिर्फ क्या होता है, वो उस चीज़ पर डिस्कस करने लगते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड पॉजिटिव नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स टॉपिक्स एंड एग्जाम्पल्स। सो नेक्स्ट टॉपिक्स इज नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक। तो जो हम बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, साइंस इट मीन्स साइंस is an organized branch of knowledge, right? Knowledge, it means rules, regulations knowledge, okay, use of technologies, okay, current affairs, okay. So that analysis cases effect which types of cases, right, like corona, है ना, coronavirus is effect of current affairs, national incomes, okay, affairs of business, okay. So many persons and many businessmen are very afraid for this time. So economics is an organized branch of knowledge that analyzes cases and effect, right. At this time case of corona, an effect is very bad effect, okay. So effect is financial problems, okay. All are all persons and all businessmen mostly very affect, very critical situation at this time, because okay. So effect of relationship between economical agents and further economics help in integrating various science and such as mathematical, statistical, to identify the relationship between price and demand and supply and the other economics factor. अगर बात की जाए यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इट मीन्स रूल्स रेगुलेशंस। अब रूल्स रेगुलेशन कैसे, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपको मैथमेटिकली फंक्शंस स्टैटिकली आते हैं, राइट, कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कितनी अपर हुई है, कितनी डाउन हुई है, ठीक है, या उसमें और कितनी ब्रॉडकास्टिंग है, हम कितना उसको अपर कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं, या फिर लास्ट ईयर की क्या थी, जस्ट एग्जांपल ऑफ बजट। सो
बजट लास्ट ईयर किया था उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आई या उसमें क्या क्या रहा, एंड प्रेजेंटली बजट क्या है, ठीक है, इन फ्यूचर जो हमें बनाना है फ्यूचर के लिए वो चीज़ कैसे होगी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है तो मैथमेटिकली स्टैटिकली उसे एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स अ थ्योरिकल लेवल, राइट। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइंटिफिकली चीज़ें, ग्राफ, चार्ट्स, पाई चार्ट्स, इनका यूज़ करना होता है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई रिलेशन, अब किस चीज़ का रिलेशन आपको बताना पड़ता है। तो इन इकोनॉमिक्स इफ़ यू एक्सप्लेन एनी रिलेशन जस्ट लाइक ऑफ price of product, individual price, okay, demand, supply, another economic factor, दूसरे factors कौन से होते हैं कि what is the effect, like cases and effect, what is the if cases, right, like कोरोना है, राइट, या फिर रनिंग सीजन है, तो उनका ये केसेस के कारण इफेक्ट क्या पड़ा कि बिजनेस क्या हो गया, डाउन हो गया, डाउन फ्लो आ गया, या अगर अपर फ्लो आया है उसका, ठीक है, तो उनका इफेक्ट क्या पड़ा है, हाउस होल्डर्स पर क्या रहा है बेटा, बिजनेसमैन पर क्या रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैरिज टाइम, फेस्टिवल टाइम्स, तो उसमें उसी चीज़ का उस केस का क्या इफेक्ट होता है, गुड इफेक्ट, राइट, एवरी बिजनेसमैन एंड एवरी कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, ओके। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया है। नाउ आर्ट्स, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। अब आर्ट्स में क्या है, आर्ट्स में वो चीज़ है कि जो आपने किया है, जो आपके पास नॉलेज है, अब उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो वो चीज़ यहाँ आती है कि किसी चीज़ को किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक जैसे हमने बात की थी बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या किया था कि जो हमने रूल्स रेगुलेशन मशीनें यूज़ की हैं, है ना, साइंटिफिकली, या रूल्स रेगुलेशन किए, अब उसको अप्लाई आर्ट में किया था, उसको अप्लाई कैसे करना है कि आप किसी को कोई भी चीज़ सेल करनी है, तो इससे आर्ट, राइट, उसको सेल करने की एक प्रोसेस होती है, एक आर्ट होता है कि आप कैसे कितने अच्छे तरीके से किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में आप अपनी कॉस्ट को किससे रिड्यूस कर सकते हो, वो आर्ट होता है, ठीक है। आर्ट इज दिस अ डिसिप्लिन दैट एक्सप्रेस द वे थिंग आर टू बी डन, राइट, आपको कैसे कोई भी चीज़ कंप्लीट करनी है, सो एज टू अचीव द डिज़ायर, एंड इकोनॉमिक्स हैज़ अ वेरिएबल branches like production, distribution, consumption and economics, right। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन दैट एक्सप्रेस दैट वे थिंग्स आर टू बी डन, आपको कोई सी भी ऐसी जगह जिससे आप उसको अच्छे से बता सकते हैं, तो आपके गोल को, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए होता है ये, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स हैज़ अ वेरिएबल ब्रांचेस, यहाँ पर ब्रांचेस जो होती है इकोनॉमिक्स में होती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप प्रोडक्शन में बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उस प्रोडक्शन में क्या चीज़ होती है कि उस प्रोडक्शन को और अच्छा करना है ना, तो वो उस चीज़ में आर्ट होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करवा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या नए आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, कंज्यूम्शन होता है ना, जो कस्टमर्स के लिए होते हैं। इकोनॉमिक्स एंड दैट प्रोवाइडेड अ जनरल रूल्स, ठीक है, एंड लॉ एंड आर द कैपेबल ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी बिजनेस में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर आप चाहें तो हमारे 11th की जो बिज़नेस की है, अगर आप रिवीजन के तौर पर देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया है कि ऑलरेडी सोसाइटी की भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। भैया ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, लाइक एंटी पॉल्यूशन यूज़ करना है, प्राइस लेवल ठीक रखना है, जनरल प्राइस रखना है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो जनरल रूल्स एंड लॉ द आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जितनी प्रॉब्लम्स है उस सब का काम हमने ले रखा है कि भैया हम ठीक करेंगे है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है आर्ट में। So, therefore, economics is the considered as a science as well art, दोनों चीज़ होती हैं। Such in terms of its methodology, मैथोलॉजी मीन्स मेथड्स कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी मेथड से आप अपना बिजनेस या इकोनॉमिक्स को चेंज करना चाहते हैं। एंड आर्ट्स इज़ एन एप्लीकेशंस, आर्ट में उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। हैंस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बोथ theoretical and practical aspect. Economics problems which is encounter in our day to day life, अगर देखा जाए कि इकोनॉमिक्स में थ्योरी भी आ गई, प्रैक्टिकल भी आ गया। अब प्रैक्टिकल कैसे आया, थ्योरी कैसे आई, जो हम पढ़ रहे हैं ये थ्योरिकल है, अब उसको हमें अप्लाई करना है एज अ आर्ट फॉर्म में, वो प्रैक्टिकल है कि भैया हमने पढ़ तो लिया, अब उसको बताएं कैसे कि ये कैसे रिड्यूस होगी कॉस्ट,
है ना। हमने बिजनेस में पढ़ लिया, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया, बिजनेस ये होता है, बिजनेस वो होता है, इकोनॉमिक्स ये होता है, पर जब हमें तब पता चलता है जब हम उसको प्रैक्टिकली फॉर्म में करते हैं, है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर हम देख लेते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब इकोनॉमिक्स में 3 इकोनॉमिक्स होती हैं, कैपिटल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सो यहाँ पर जो बताया गया है कैपिटल इकोनॉमी इट मीन्स दैट इकोनॉमिक्स ऑफ प्राइवेट लेवल। जस्ट एग्जाम्पल हम प्राइवेट लेवल, इट कैपिटल इकोनॉमिक्स इज प्राइवेट लेवल, इट मीन्स देयर इज नो इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता है, यहाँ पर प्राइवेट तौर पर होता है, ठीक है। और कैपिटल इकोनॉमिक्स में मतलब प्राइवेट ही रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं। जो भैया जनरल है वो तो हमें फॉलो करना ही है, पर जो भी हैं वो सभी यहाँ पर गवर्नमेंट के कोई इंटरफेयर नहीं होता है। अगर बात करते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी इट मीन्स गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, ओके। यहाँ पर प्राइवेट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे हमें 12th में सिर्फ जनरल है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, आपसे। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मुझे बहुत बड़ा पसंद है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल और सोशलिस्टिक दोनों की चीज़ें यहाँ पर मिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमने इन 11th क्लास वी ऑलरेडी लर्न इन बिजनेस सब्जेक्ट, ओके, प्राइवेट, पब्लिकल एंड मिक्स्ड, जो हम पढ़ चुके हैं कंपनी में, है ना। तो यहाँ पर हमने जैसे प्राइवेट में बात की, तो यहाँ पर भी इसी टाइप से कैपिटल में प्राइवेट की बातें हो रही हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में वो इकोनॉमी बेटा जिसमें सिर्फ प्राइवेट तौर पर है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। सोशलिस्टिक में जिसमें प्राइवेट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। और यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का मिक्सचर होता है ना। मतलब कि प्राइवेट वाले भी कुछ इकोनॉमिक्स में मतलब अपनी हेल्प कर रहे हैं और गवर्नमेंट तो कर ही रही है, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ चलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? इफ़ वी स्टार्टेड एनी बिजनेस, जस्ट एग्जांपल, स्टार्टेड ऑफ एनी बिजनेस, वी इन आवर माइंड विच टाइप्स ऑफ बिजनेस सुटेबल फॉर अस, राइट। कौन सा बिजनेस हमारे लिए सबसे परफेक्ट होगा, फॉर बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है, परफेक्ट फॉर अस, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, फॉर अर्निंग मनी, right? So is that the same types of economy, right? कि किस क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट क्वांटिटीज, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड हु टू प्रोड्यूस, फॉर हु टू प्रोड्यूस, कौन प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि वही चीज़ कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात कर ली कि घर में हम अकेले हैं, ठीक है, मम्मी चली गई हैं बाहर, राइट, और भैया हमें कुछ खाना बनाना आता नहीं है ना। अब हमें लगी है भूख, तो हमें क्या करना है? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाना क्या है जो हमारे लिए अच्छा। सेकंड, कैसे बनाना है, क्योंकि आता नहीं है। एंड थर्ड इज कौन बनाएगा, जब कोई है ही नहीं तो बनाएगा कैसे, राइट। तो भैया या तो हम जो हमने इकोनॉमिक्स में सीखा है कि वही चीज़ हम कर सकते हैं, यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। अगर घर में मैगी रखी है तो मैगी बनाओ 5 मिनट में और खा जाओ, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कौन प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की जाए टॉपिक्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमिक्स में। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फेस्ड बाय एंड कॉमन टू ऑल काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अगर देखा जाए तो सभी के लिए प्रॉब्लम्स होती है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, तीनों इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर बात की जाए दैट इंक्लूड प्रॉब्लम्स विद अ डिस्कशन मेकिंग अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हूम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए, क्यों और कब करना है भैया, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं, है ना। अब बात की जाए
कि एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा शुरू से वही एक पेन चलता आ रहा है, हमें एक मार्कर का पेन है, तो हमारे लिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या आ गई, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, तो हमने डिसाइड किया भैया एक मार्कर पेन हमें प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, तो हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होगी, कलर्स भी मिल रहे हैं, प्लास्टिक भी मिल रहे हैं, शेपर्स भी मिल रहे हैं, है ना, डिज़ाइन। तो हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। तो अब आप ये चीज़ ना हो, क्योंकि ये ऐड किया गया है, इसलिए ऐड किया गया है जिससे समझ में आ जाए, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में, हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो इनपुट होता है, मतलब हमने जो रॉ मटेरियल कलेक्ट किया है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है। देन आफ्टर वी कलेक्ट आउटपुट, राइट, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो हम बात कर लें कि ये चीज़ क्या होती है, क्योंकि टॉपिक में नहीं दिया गया है, ये उसी से एडेड है। सो प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एन इक्वेशन, टेबल or graph, okay, representing the maximum amount of commodity. It means only of maximum amount of commodity, different types of commodity, right, which types of production. So production function can be equation, table और graph. ये जो production function है वो क्या है, टेबल है, ग्राफ है, किस टाइप से आप उसको प्रेजेंट करते हैं, जो आपकी कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस और गिवन सेट ऑफ इनपुट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, कि कितना आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया है, कितना फंक्शंस हुआ है, उसमें कितना क्या लगा, और आपके पास एक्चुअल क्या आया। सपोज करो आपने 10 यूनिट्स लगाई हैं, उसमें से जो वो फंक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि 10 यूनिट्स लगाई गई हैं, पर वो फंक्शंस होती हैं, कुछ रॉ मटेरियल में हो जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता है, फिर हमारे पास वो पूरा कंप्लीट होकर हमारे पास 5 ही आती हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ है, मतलब कि एक्चुअल हमारे पास कितनी चीज़ आई है, ठीक है, तो वो चीज़ आउटपुट कहलाती है। सो नेक्स्ट इज बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स की होती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्केयर रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, जो हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, और आप ऑलरेडी 11th में भी पढ़ चुके हैं। स्केयर रिसोर्सेज, limited resources, because we have a limited resources, and economics already explained that we have a limited resources and how to use limited resources and survival in economics, in business, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब आप अपनी वांट्स को, अपनी डिज़ायर को कैसे फुलफिल करते हैं इन लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू, ये आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है। ठीक है, सो अल्टरनेटिव यूज़। अब यहाँ पर ये जो चीज़ आपको बताई गई है एज ए ग्राफिकल फॉर्म में कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, अनलिमिटेड हमारे वांट्स हैं। अब इसको अल्टरनेटिव यूज़ कैसे करेंगे कि अभी कर लिया, फिर एक के बाद फिर बाद में कर लिया, मतलब कि अभी जो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम पहले उसको कंप्लीट कर लें, देन सेकंड वाले को इन फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दें। ठीक है, वो चीज़ हम कर सकते हैं। So next is and last, opportunity cost. I already explained that opportunity cost in general way is next and of course next chance for you. Okay, so when you make a decision, the most valuable alternative you give up is your opportunity cost. अगर आपके पास second अल्टरनेटिव, मतलब उस एक के बाद एक कोई दूसरा चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोल सकते हैं, अच्छा मौका है जिसको हम बोल सकते हैं, उससे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एग्जांपल दैट बॉय, राइट, इसके पास बॉल भी है, और मतलब दोनों बॉल ही कहेंगे इसे, ठीक है, मुझे स्पोर्ट्स का इतना पता नहीं है, तो एक बास्केटबॉल है और शायद दूसरी क्या कहते हैं, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, आई थिंक जो भी है नाम पता नहीं है मुझे इसका, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर इनके पास क्या है, दो अल्टरनेटिव चॉइस है कि या तो ये गेम खेलें या वो गेम खेलें। ठीक है, तो यहाँ पर इसी टाइप से जिस एग्जांपल ऑफ जॉब है ना, इसको हम ले लेते हैं कि अगर एक पर्सन अगर एक कंपनी में काम कर रहा है और उसके साथ उसे एक जॉब के साथ दूसरा एक अल्टरनेटिव चॉइस मिल जाता है कि उससे अच्छी पोस्ट, उससे अच्छी सैलरी, अच्छी अपग्रेशन होता है, तो वो उसे भी सिलेक्ट कर सकता है। मतलब दोनों में से यहाँ पर चीज़ क्या हो गई, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, राइट, दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मीन्स अ सेकेंड अल्टरनेटिव चांस, राइट, मतलब सेकेंड चांस मिल गया कि भैया इसके बदले में हम ये चीज़ ले सकते हैं, बहुत अच्छा ऑफर है तो हम बिल्कुल लेंगे, राइट, दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
And I think you like this topic. So please like, share, and comment. And mostly subscribe this channel. Thank you so much.